Hello everyone, and today we are going to discuss United Nations Security Council's election of the non-permanent members. Why this topic? Because India is the strong contender to be elected as the non-permanent member. Today, Indian government or the Foreign Affairs Ministry, the ministry is under the Minister of Foreign Affairs, that is Mr. Jaishankar, and today he placed India's approach to the United Nations Security Council, and it is guided by 5S, which is set forth by the Prime Minister Narendra Modi. What are the 5S? The 5S which we will discuss are Samvad, that means dialogue; Samman, that means respect; Shanti, that means peace; Samriddhi, that means prosperity; and Sahyog, that means cooperation. So, why this topic is necessary for us? Because the United Nations General Assembly want to hold the election of 5 non-permanent members of United Nations Security Council, and it was earlier said that these elections will be held on June 17. So recently this topic was in news, so we need to know about this topic in detail. आज हम लोग इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस गेन करेंगे, बिकॉज ये जनरल नॉलेज का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. बट टुडे मैं पूरा यूनाइटेड नेशन डिस्कस नहीं करूँगा, बट यहाँ से हम लोग 3 टॉपिक ज़रूर डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट वन विल बी द जनरल असेंबली एंड इट्स रोल. The second one will be Security Council, and the third one will be ECOSOC. What is ECOSOC? Economic and Social Council. Why Economic and Social Council? We will discuss because United Nations General Assembly President Mr. Tajani Mohammad Bande announced that the election of the Economic Social Council will be held simultaneously with the Security Council. So this topic is also important. So आज के इस वीडियो में हम ये 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे और किस तरीके से ये इलेक्शन होता है उसे भी समझेंगे. इंडिया जो कि 8वें बार means the 8th time, it will be the 8th time when India will be elected as the non-permanent member of United Nations Security Council, the 8th time. Earlier in 2011 it was elected as the non-permanent member, and it is trying to hold its position as the permanent member of United Nations Security Council. So here आपको कुछ चीज़ें जानने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है. पहले मैं न्यूज़ की सारी बातें बता दूंगा और इस चीज़ को अच्छे से डिस्कस करेंगे हम लोग. So India is contending for the Asia Pacific seat. So Asia Pacific seat के लिए इंडिया कंटेंट कर रहा है. इसके अलावा भी जो बाकी सीट्स हैं उसमें से 5 सीट के जो इलेक्शन होंगे उसके कंटेंडर के नाम भी आप जानेंगे. यहाँ आपको ये चीज़ समझना है कि रिसेंटली द यूनाइटेड नेशन एक डिसीजन ली है कि जून 2020 में विदाउट प्लानरी मीटिंग, यानी बिना कोई मीटिंग के जो इलेक्शन होता था पहले, वो नॉर्मली जनरल असेंबली के मेंबर्स इस इलेक्शन में शामिल होते हैं और बाय द वोटिंग ये इलेक्शन होता है. सो दिस ईयर चूँकि कोविड-19 के वजह से इसमें रिस्ट्रिक्शन पड़ गया और ये हो नहीं पा रहा सही, मैंने हो नहीं पा रहा था, तो इसको इलेक्शन को होल्ड करने के लिए डिसीजन लिया है यूनाइटेड नेशन ने. और मिस्टर तजानी मोहम्मद बंदे ने ये अनाउंस किया कि दोनों इलेक्शन एक साथ होंगे, यानी सिक्योरिटी काउंसिल और इकोसॉक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का दोनों का इलेक्शन एक साथ होगा.
इसके अलावा मैं आपको पहले ही बता दूं कि कौन कंटेंडर्स हैं, लाइक कनाडा, आयरलैंड एंड नॉर्वे, दे आर कंटेंडिंग फॉर द वेस्टर्न यूरोप एंड अदर कंट्रीज कैटेगरी, ये लोग कंटेंड कर रहे हैं। मैक्सिको इज़ द ओनली कैंडिडेट ऑफ द लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन सीट, and Kenya and Djibouti will be the contest for the seat of African group, and India is the contender for Asia Pacific group. I will discuss about the seat categories, कैसे कितने सीट्स होते हैं कहाँ के लिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट यहाँ पर पहले आप इस 3 टॉपिक को समझ लें कि ये 3 टॉपिक जो है जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल और इकोसॉक किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए मैं आपको अपने एक डिटेल्ड नोट के थ्रू उसको पढ़ाऊँगा। यहाँ पर पहले आप ये जानें कि यूनाइटेड नेशन जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इट इज़ द सक्सेसर ऑफ लीग ऑफ नेशन। सो लीग ऑफ नेशन which was formed by after the World War I। पहले वर्ल्ड वॉर के बाद में लीग ऑफ नेशन फॉर्मेशन हुआ था, और चूँकि लीग ऑफ नेशन का फेलियर हुआ तो आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन हुआ, और इसके 6 प्रिंसिपल बॉडीज़ हैं, जिसमें से जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल और इकोसॉक ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा भी जो काउंसिल्स हैं मैं उनको सबको एक साथ अभी आपके सामने अब रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। आप इस वीडियो को एंड तक देखें, आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू मिलेंगे, बिकॉज दिस इज़ बेस्ड ऑन द करेंट अफेयर्स एंड द ट्रेडिशनल जीके, जो दोनों को मिक्स करके ये वीडियो बनाया गया है। सो मैं अब आपको दिखाऊंगा हमारा नोट, जो कि स्पेसिफिकली बेस्ड है यूनाइटेड नेशन के ऊपर। सो दिस इज़ द नोट बेस्ड ऑन यूनाइटेड नेशन, बट मैं डायरेक्टली आपको, फॉर मेकिंग दिस वीडियो शॉर्ट, आई विल डिस्कस अबाउट द दीज 3 प्रिंसिपल ऑर्गन्स जो मैंने आपको बोला। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि प्रिंसिपल ऑर्गन्स में जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल और इकोसॉक ये मैंने आपको दिखाया। इसके अलावा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ट्रस्टीशिप काउंसिल एंड सेक्रेटरीट भी इसके पार्ट हैं। इसके अलावा एक करंट अफेयर्स जो आज 6 जून के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूं, बट मैं यूनाइटेड नेशन के ऊपर एक अच्छा वीडियो ज़रूर आपको प्रेजेंट करूंगा इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। सो ये आप जानें कि यूनाइटेड नेशन में जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस होते हैं वो 6 लैंग्वेजेस हैं: इंग्लिश, फ्रेंच, चाइनीज़, रशियन, अरबिक एंड स्पेनिश। सो 6 जून जो कि आज का डेट है, 6 जून को रशियन लैंग्वेज डे सेलिब्रेट किया जाता है। 6 जून को रशियन लैंग्वेज डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसी तरीके से आफ्टर 2010 यूनाइटेड नेशन अपना जो ऑफिशियल लैंग्वेज है सबका एक स्पेशल डे फिक्स करके उसे भी सेलिब्रेट करता है। मैंने सिर्फ आज का रशियन लैंग्वेज डे बताया, बट स्पेसिफिक यूनाइटेड नेशन जो वीडियो होगा उसमें आपको हर एक चीज़ बताया जाएगा। यहाँ आप समझ ले, देयर आर 193 कंट्रीज़ एडमिटेड इन दी यूनाइटेड नेशन। और चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ जनरल असेंबली से। जनरल असेंबली विच इज़ ए कंसिस्ट ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड मीन्स, यानी यहाँ पर 193 मेंबर्स सभी शामिल होते हैं, और हर नेशन अपने 5 डेलीगेट्स भेज सकता है, जिसमें से सिर्फ हर नेशन के पास एक ही वोट होता है, यानी एक वोट हर नेशन प्लेस कर सकता है। इसका एक रेगुलर असेंबली जो है हमेशा हर साल सितंबर में, हर साल इसे बिगनिंग में, सितंबर के बिगनिंग में हर साल ये मीट होता है सितंबर के बिगनिंग में। इसके बाद आपको बता दूं सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। सो चूँकि सिक्योरिटी काउंसिल जो कि यूनाइटेड नेशन का एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है,
और इसमें टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनके नाम कुछ इस तरह है: चाइना, फ्रांस, रसिया, यूके एंड यूएसए। एंड इससे पहले इंडिया इस चीज़ के लिए भी अपनी पोजीशन बना रही है कि ये इस परमानेंट मेंबर्स के ग्रुप में भी शामिल हो जाए, ठीक। लेकिन इसमें से जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, इसी के इलेक्शन के बारे में जो है जून 17 को इलेक्शन होने वाला है। इलेक्शन किस तरीके से होगा मैं बताऊंगा। इसके अलावा जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं उसके पास वीटो पावर्स होता है, यानी अगर कोई भी डिसीजन लिया जाए और सभी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, बट कोई एक परमानेंट मेंबर अगर उसके खिलाफ वीटो पावर अप्लाई करके एक नेगेटिव वोट कास्ट करता है तो वो डिसीजन वाइड साबित होगा। चलिए चलाते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ इकोसॉक, दैट इज़ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इस ग्रुप में टोटली 54 रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, 54 रिप्रेजेंटेटिव्स, और इस ग्रुप को इलेक्ट किया जाता है बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ जनरल असेंबली। द सेम प्रोसेस इज हेल्ड इन द केस ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। And the main function of ECOSOC, that is Economic and Social Council, is to achieve the international cooperation and solving the international problems of economic, social, cultural and humanitarian character. So this is the main function of ECOSOC, that is Economic and Social Council. After that, you should know that each year 1/3 of the council is elected every year and for period of 3 years. यानी इकोसॉक के जो काउंसिल्स हैं इसमें जो मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं वो फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। बट अभी मैंने आपको बताया कि जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं वो कितने साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं, दे आर इलेक्टेड फॉर 2-year टर्म। ओके, यू शुड डू नॉट मिक्स विद दिस थिंग्स, ओके। और हर साल इसके बराबर के मेंबर्स एनुअली रिटायर भी होते हैं। तो जो 54 मेंबर्स हैं उसका 1/3 कितना होता है, लाइक 18 मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर द इकोसॉक, यानी 18 मेंबर्स का इलेक्शन होगा फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो ये आपको जानना था फॉर द यूनाइटेड नेशन बेस। जो न्यूज़ में जो चीज़ था मैंने सिर्फ उस 3 चीज़ को आपके सामने डिस्कस किया। इसके बाद आप ये जाने कि हमारे जो जनरल असेंबली के जो प्रेसिडेंट हैं तजानी मोहम्मद बंदे, उन्होंने अनाउंस किया कि ये इलेक्शन होगा कैसे। तजानी मोहम्मद बंदे ने कहा कि एक लेटर जो है सर्कुलेट किया जाएगा सारे मेंबर स्टेट्स को एटलीस्ट 10 वर्किंग डेज प्रायर टू द फर्स्ट राउंड ऑफ सीक्रेट बैलेटिंग, और इसके बाद उन्हें इन्फॉर्म किया जाएगा कि कहाँ पर और किस वेन्यू पर ये इलेक्शंस होंगे एंड द इलेक्शन जो है वो कितने वैकेंट सीट्स हैं, नंबर ऑफ़ वैकेंट सीट्स, दैट इज़ यहाँ पर 5 वैकेंट सीट्स हैं, उसके हिसाब से ये होगा और वेन्यू बता दिया जाएगा। जब इलेक्शन होगा सेक्रेट बैलेट के थ्रू, तो उसमें से अगर बाई दी 2/3 मेजोरिटी अगर सारे मेंबर्स यानी 5 सीट पर मेंबर अपॉइंट या इलेक्टेड हो जाते हैं तो ये इलेक्शन सही करार दिया जाएगा। अगर 2/3 मेजोरिटी से कोई नहीं इलेक्ट होता है तो फिर नेक्स्ट राउंड ऑफ वोट के बारे में दोबारा से इंफॉर्मेशन दिया जाएगा थ्रू दी जनरल असेंबली प्रेसिडेंट तजानी मोहम्मद बंदे। तो ये भी आपको याद रखना है कि मिस्टर तजानी मोहम्मद बंदे इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको यहाँ से ये भी जानना है कि हर साल जो है 5 मेंबर्स का इलेक्शन होता है आउट ऑफ 10, ठीक है। जब 2 साल का टर्म कंप्लीट हो जाता है किसी भी 5 नेशन का, तो उन 5 नेशन को रिप्लेस करके नए 5 नेशन के लिए हर साल इलेक्शन किया जाता है। ओके, सो द सीट्स आर कि किस तरीके से ये 10 नॉन परमानेंट सीट्स को एलोकेट किया जाता है, वो है कि 5 अफ्रीकन एंड एशियन स्टेट्स के लिए सीट्स हैं, ठीक है। 1 ईस्टर्न यूरोप स्टेट्स के लिए सीट है, 2 फॉर लेटिन अमेरिकन स्टेट्स एंड कैरेबियन स्टेट के लिए 2 सीट्स हैं, और
वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स के लिए 2 सीट्स हैं, यानी अफ्रीका और एशियन नेशन को मिलाकर 5 सीट, 1 सीट फॉर ईस्टर्न यूरोप स्टेट्स और 2 सीट लेटिन अमेरिकन एंड कैरेबियन स्टेट्स एंड 2 सीट फॉर वेस्ट यूरोपियन स्टेट्स। ये भी आप जान ले कि इन जनवरी 2020 देयर वाज द इलेक्शन ऑफ 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स, और इन नॉन परमानेंट मेंबर में कुछ नेशंस हैं लाइक वियतनाम, नाइगर, एस्टोनिया, तुनिशिया, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाडाइंस। ये लोग इलेक्ट हुए हैं 2 ईयर टर्म के लिए, यानी जो इस बार 5 इलेक्ट होंगे नेशन, उनको छोड़ करके जो बाकी 5 नेशन हैं वो ये हैं, यानी वियतनाम, नाइगर, एस्टोनिया, तुनिशिया, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाडाइंस। ये भी आप जान ले कि सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाडाइंस इज़ द स्मॉलेस्ट एवर नेशन टू सिक्योर ए सीट इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स नॉन परमानेंट मेंबर्स। तो आपके लिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाडाइंस इज़ द स्मॉलेस्ट एवर नेशन टू सिक्योर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सीट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रेजेंट सिनेरियो। ये मैंने टोटली प्रेजेंट सिनेरियो के बेसिस पे जो टर्म्स यूज़ हुए थे न्यूज़ में, मैंने उसके ऊपर ये वीडियो बनाया। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन पर का अगर आपको कंप्लीट वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें कि मुझे यूनाइटेड नेशन पे नया वीडियो बनाना चाहिए या नहीं, और मैं उसके बेसिस पे भी आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दूंगा। ये आपको याद रखना है कि अभी जो सेक्रेटरी हैं यूनाइटेड नेशन के मिस्टर एंटोनियो गुटेरेस, उनका नाम भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, वो भी आप याद रखें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप that I was clear to all of you, and please subscribe our channel as soon as possible for the new and interesting videos. Thank you.